Hello, Assalamu alaikum friends. As you know, uh, we are implementing our capacity building project, and I'm Hussein Laghari. Miss Aisha is here. She has to start her lecture, but before the lecture, she will conduct a activity. She will ask few questions from you, from the learners. So I would like to ask Miss Aisha to start her activity. Miss Aisha, are you here? Assalamu alaikum, learners. Hope you all are doing great. So today is our, I think, 10th lecture. So before starting our lecture, I was thinking to take a random quiz just for knowledge from the previous classes that we have covered till now. So without wasting our time, let's start. I am asking some questions as well as there's a screen shared with you. You can see. I will write a question and you have to answer them. All the questions all the question will be from previous classes that we have already, learned. So let's start. So here I am writing the word first question from class 2. This is अगर आप लोगों को याद हो, हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने यकीनन एक माल्टोज का भी जिक्र किया था। माल्टोज एक कंपाउंड है जो कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। सो आई वांट टू नो कि माल्टोज किन से मिलकर, क्योंकि डाइसैकेराइड है तो यकीनन ये किसी मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। तो किन मोनोसैकेराइड से मिलकर माल्टोज बनता है? You can answer in the comment section. Here is the second question, that is, name the molecule that is present in the plasma membrane. We have already discussed about the cell, the composition of whole cell, the components of cell. So in the cell lecture, we already had discussed that the plasma membrane is composed of some molecules, some major molecules, that is the main component of plasma membrane. So you can tell me what is that molecule. I'm going to ask the third question, that is, okay, here is our third question, that which particle is non-cellular, obligate, endoparasite? Okay, so the third question is, which particle is non-cellular, obligate, endoparasite? Okay, the fourth question is, why mitochondria is called the powerhouse of cell? These are very basic questions that I am asking today. There's nothing difficult in them. All right. The fifth question is, RNA contain which nitrogenous base? We have discussed that there is one nitrogenous base that is different in both, like DNA contain any other, and the RNA contain any other nitrogenous base. So what is the name of the nitrogenous base that RNA contain, basically, that differ RNA from DNA? So now I'm writing our 6 questions, that is, Hello. Ji, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ma'am, answer दिया ना? Ji. Maltose, galactose and glucose जो ठहरा है? माल्टोज किससे बना हुआ है? Galactose and glucose. गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, आपको कंफर्म है? हाँ, I think so. गैलेक्टोज और ग्लूकोज से दानियाल एक्चुअली लैक्टोज बना है, नॉट माल्टोज। फिर galactose and fructose. नहीं,
when two monosaccharides of glucose combine, then it form a maltose. Maltose दो ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स यानी शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. Mean both sugar. जी, both glucose. And the molecule present in plasma membrane. Phospholipids. ओके, फॉस्फोलिपिड्स की कितनी लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 2 layers. गुड. The Can you please tell us why mitochondria is called powerhouse of cell? because it produces the adenosine triphosphate. Okay. All right. Okay. Now tell us that which particle is non-cellular obligate endoparasite? Virus. Okay. Good. I want to ask a very simple question from you. Would you answer? Yes, ma'am. Okay. Tell us why viruses are not placed in any kingdom. Ma'am, because it doesn't have any like cell. It is the borderline. It's nor living nor non-living. When it's in the host, it's living. When it is outside of the host, it's non-living. Good. ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने दिया है कि बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी सिंगल सेल इवन, इसी वजह से हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं करते. ओके, नाउ टेल अस व्हाई व्हिच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए? It is adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil. ओके, Sorry, uracil. गुड. दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन वाज कि आरएनए और डीएनए में 3 तो नाइट्रोजनस बेसिस सिमिलर होती हैं, एक ही है Yes. जो डिफरेंट है दोनों के अंदर, दैट इज यूरासिल इन आरएनए एंड थायमाइन इन DNA. ओके. गुड. ओके, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? Bacteriophage is the virus which kills bacteria. Good. How many life cycles of bacteriophage? 2 life cycles. Okay, which one is the life cycle in which bacteriophage destroy the bacteria? The lytic cycle. All right. And which one is the cycle in which bacteriophage communicate with bacterial plasmid? Lysogenic. Okay. The seventh question that I asked is which RNA transfer amino acids to ribosomes? Ribosomal RNA. No. Transfer RNA. Yes, yes. Because the transfer, transfer function जो है ना वो ट्रांसफर आरएनए का ही है एक्चुअली, और उसी का ही काम है कि वो अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स में ट्रांसफर करता है, और फिर राइबोसोम्स के अंदर उन अमाइनो एसिड्स को ऐसे समझ लें कि मेंटेन करके ये सीक्वेंस से लगा के और उससे प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोमल आरएनए का है. Sorry. Okay. Now I am typing my 8th MCQ. What is cyclosis? Ma'am, it's the movement of the cytoplasm. Good. And the fluid that is present in the cytoplasm is called? Protoplasm. The
living material of the cell. Okay, but the specific name that we give to the fluid या matrix gel-like structure that is present in the cytoplasm is Mitochondria. no. Ma'am, please can you repeat the question? I'm asking that which one is the what is the gel-like matrix that is present in the in the cytoplasm of the cell? Okay. I think I don't know. Okay, कोई मसला नहीं है. It is cytosol basically. Cytosol हम एक specific term देते हैं. साइटोसोल वो जेल लाइक मैट्रिक्स है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और उसी की मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं. Okay, ma'am. If you have any question from any topic, you can ask. I'm clear for now, ma'am. Okay, good. Sir Hussain. Yes, can we start now? Okay, easy, sir. Let's start the topic. Hello. Yes, sir. I think Let's start. we should start the lecture now. Okay. Over to you. I think you should start. Yes, sir. Thank you. So, dear learners, as you know that today is our 10th class about kingdom Protista. In the previous class, we have studied the kingdom Monera and their characteristics, the bacteria, the cyanobacteria features, and everything about kingdom Monera. Today, we are going to discuss the second kingdom, that is kingdom Protista. Okay, next. Okay. हमने जब 5 किंगडम्स के बारे में जस्ट ओवरव्यू लिया था तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि ओनली द किंगडम मोनेरा हैव प्रोकैरियोट्स और इसके अलावा किसी और किंगडम में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स नहीं है. ऑल द 4 किंगडम्स कंटेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर जो एक कंप्लीट सेल रखते हैं, लाइक जिनके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है. और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, इसके मेन फीचर्स में क्या आता है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी जानदार हैं तमाम यूनिसेलुलर होते हैं, बट प्रो नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं एक्चुअली. दैट इज व्हाई it is placed in another that is why all the unicellular organisms are placed into kingdom Protista but not in the kingdom Monera because they have eukaryotic, while kingdom Monera have prokaryotes. Okay, next. Okay, the first thing that we should know that kingdom Protista are eukaryotic and unicellular organisms. Kingdom Protista contain eukaryotic and unicellular organisms. जितने भी आपको ऊपर जितने भी आपको जो है ना unicellular organisms नजर आ रहे हैं, इधर वो slime mold है, amoeba है, euglena है, dinoflagellated है, paramecium है, diatom है, मैक्रोएल्गा है. ये तमाम के तमाम जो है ना यूनिसेलुलर है एज वेल एज यूकैरियोटिक है. तो पहला जो मेन कैरेक्टर है वो तो यही है किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट दे आर यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर एज वेल. ओके, नेक्स्ट. द फर्स्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज द अमेबा. अमेबा को हम कहते हैं कि दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट जो है ना बेसिकली प्रोटिस्ट जितने भी जानदार हैं बेशक वो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, लेकिन वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिजेंबल करते हैं. जैसे अमेबा है, अमेबा को हम कहते हैं कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है. कुछ और है जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ और है जो अल्जी लाइक प्रोटिस्ट होते हैं. तो हैं तमाम ही प्रोटिस्ट लाइक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले हैं, पर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके दूसरों जैसे हैं और जिससे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल करते हैं, हम इन्हें उन्हीं जैसा कहते हैं. तो सबसे पहले तो अमेबा की अगर हम बात करें
यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर माइक्रोग्राफ मौजूद है दैट यू कैन सी के हाउ अमेबा लुक इन अ माइक्रोग्राफ। और अगर अमेबा की हम बात कर रहे हैं तो अमेबा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज है ना, जो मेरे ख्याल में हर एक को पता होनी चाहिए कि अमेबा एक बहुत बहुत सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक है, और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। और नॉर्मली ये पॉन्ड्स में, मड में और इन तमाम जगहों पे जहाँ पे भी पानी है या कीचड़ वगैरह है, यहाँ पे ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। अमेबा कंटेन न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनल्स। इसका जो खाने का प्रोसीजर है, इसका मूवमेंट का प्रोसीजर है, ये हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ओके नेक्स्ट। अगर हम अमेबा के स्ट्रक्चर की बात करें, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज प्रेजेंट इन इट is its cell membrane. Cell membrane is the outermost boundary of the amoeba. You can see here. और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब अमेबा के अंदर दो किस्म के साइटोप्लाज्म है, लाइक वन इज द आउटर रीजन एंड अनदर वन इज इन द इनर रीजन। जो आउटर रीजन है वो थोड़ा ज्यादा जेल लाइक सब्सटेंस है, जबकि जो जो जेल लाइक भी है एज वेल एज थोड़ा डार्क रीजन है। जो कि इनर रीजन है वो जेल लाइक और ट्रांसपेरेंट है। तो दो ये फर्क है। तो साइटोप्लाज्म को दो वर्ड्स में या दो कैटेगरीज में हम कह रहे हैं कि एक तो एंडोप्लाज्म है, एक एक्टोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म हम कह रहे हैं जो बिल्कुल इंटरनली है, और एक्टोप्लाज्म हम कह रहे हैं उस पोर्शन को जो बिल्कुल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद है। एंडो और एक्टोप्लाज्म दोनों को हम कंबाइनली साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है जिसका काम क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो अमेबा के अंदर एंटर होते हैं उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस है एज वेल एज फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल का क्या काम है, फूड वगैरह को स्टोर करना। और इसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो है जिसका काम है कि जो है ना पानी वगैरह को, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, उस एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है, उस तमाम चीजों को ये अपने अंदर क्या करता है, बेसिकली स्टोर करता है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अमेबा के मूवमेंट की। अमेबा मूवमेंट किस तरीके से करता है, इट यूजेस इट्स सूडोपोड्स। व्हाट इज मीन बाय सूडोपोड्स? सूडोपोड्स हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्शंस जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ निकल रही हैं, मतलब साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस को हम कह रहे हैं जो कि अमेबा को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम देख रहे हैं ना अमेबा की, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि छोटी ये जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, प्रोजेक्शंस मतलब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ मैं। ये जो है ये सोडोपोडिया है, इनको हम फाल्स फूड कहते हैं। और इनको फाल्स फूड इसलिए कहा जाता है कि बजाहिर तो अमेबा को देखने में इसके अंदर कोई लोकोमोटर ऑर्गन नजर नहीं आता, लेकिन ये जो सोडोपोडिया है इनका एक्चुअल काम क्या है, ये प्रोजेक्शंस निकाल के और अमेबा को मूवमेंट करवाते हैं। लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसके, वैसे भी इरेगुलर शेप है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो इनका काम क्या है, जब अमेबा मूव करता है तो इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म मूव करता है। ओके नेक्स्ट। मूवमेंट के बाद हम अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की, हाउ डज अमेबा take nutrient? An amoeba engulfs its food and forms a food vacuole. अमेबा का काम क्या है, अमेबा खाने को ingest करता है। How does it ingest? ingest किस तरीके से करता है ये, ऐसे जैसे एक देखें, अमेबा एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज भी नहीं है। तो इसका काम क्या है, कोई भी अगर फूड मॉलिक्यूल है जिसको अमेबा ने अपने अंदर इंजेस्ट करना है, यहाँ पर आप एक लाइट ब्लू के कलर की एक डायग्राम देखेंगे, यू कैन सी कि ये अमेबा का खाने का तरीका किस तरीके से, पहले ही अपनी प्रोजेक्शंस निकाल के साइटोप्लाज्म को मूव करते हुए उस चीज के पास जाता है, उस चीज के इर्द गिर्द ये अपना साइटोप्लाज्म घुमाता है, एंड देन वो जो भी फूड मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाता है और ये इर्द गिर्द अपनी जो है ना प्रोजेक्शंस के जरिए उसको घेर लेता है। इस तरीके से अमेबा का काम है कि ये क्या करता है, इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड। और इनटेक ऑफ फूड अगर सॉलिड है, मतलब अगर अमेबा कोई सॉलिड चीज इनटेक कर रहा है तो उसको हम
जो है ना फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं, और क्योंकि ये अपने अंदर इनटेक कर रहा है इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर यही सब्सटेंस अमेबा अपने अंदर से बाहर एक्सेल कर दे तो उसको हम कहेंगे एक्टोसाइटोसिस। इसके बाद क्या होता है, अच्छा ये फूड इसके अंदर जाकर एक फूड वैक्यूल है जिसके अंदर ये क्या करता है, स्टोर होता है। इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उस फूड को तोड़ते हैं, तोड़ के उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो फिर अमेबा क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। इस पूरे ही प्रोसीजर को हम एंडोसाइटोसिस कह सकते हैं। बहुत सिंपल है कि अमेबा का ईटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है कि किस तरीके से ये जो है ना चीजों को इनटेक कर रहा है। ओके नेक्स्ट। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स टू मेंटेन एनीथिंग। होम्योस्टेसिस और रेगुलेशन इज द सेम थिंग। इसमें क्या होता है, अमेबा के अंदर रेगुलेशन या मेंटेनेंस का प्रोसीजर किस तरीके से होता है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, वाटर बैलेंस रखना। वाटर बैलेंस को कैसे, कि अगर जरूरत से ज्यादा पानी आ रहा है उस पानी को ये अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर, कि जब कभी जरूरत पड़े तो ये इसी पानी को यूजेज में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये मटेरियल को मेंटेन करता है कि कौन सी चीज अमेबा में आनी चाहिए, कौन सी चीज अमेबा में से जानी चाहिए। तो ये आने और जाने का यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाला जो है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से इसके इंटरनल जो है ना इन्वायरमेंट मेंटेन रहता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो हम सिंपली कह सकते हैं उसका काम क्या है, वाटर को बैलेंस करना। इस तरीके से अमेबा क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ओके नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अमेबा बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मींस उसको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सिंपल काम क्या है कि ये बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन हम किसको कहते हैं, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि किसी एक यूनिसेलुलर चीज का दो में डिवाइड हो जाना, इसको हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो एक पेरेंट सेल होता है यानी अमेबा जिसको डिवाइड होना है। सबसे पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा थ्रू माइटोसिस। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियस जब अलग अलग यानी दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो अमेबा बीच में से क्या होने लग जाएगा, कट ऑफ होने लग जाएगा। कट ऑफ होते होते दो अमेबा में यानी दो डॉटर सेल्स में ये चीज डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से अमेबा बहुत सिंपल बाइनरी फ्यूजन करता है, और बाइनरी फ्यूजन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। ओके नेक्स्ट। The second animal-like protist is paramecium. It is one of the most important and we can say very common living organisms found in water, fresh water especially. इसके अंदर पैरामीशियम की अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आता है, और माइक्रोग्राफ के अंदर अमेबा किस पैरामीशियम किस तरीके से नजर आता है, यू कैन सी हेयर। ये एक लॉन्ग एक लग रहा है कि लीफ की तरीके का स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट लीव, ये बेसिकली पैरामीशियम है जो पानी के अंदर है जिसकी माइक्रोग्राफ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बहुत जो है ना रिजेंबल करता है ये एक तरीके से अमेबा से। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसके अंदर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक माइक्रोमोलिक्यूल है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना साइटोस्टोम मौजूद है। और सीलिया, सीलिया का क्या काम है, पैरामीशियम को मूवमेंट करवाने के लिए, लाइक उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है सीलिया जो कि पैरामीशियम को मूवमेंट करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और इस तरीके से ये एक यूनिसेलुलर जानदार है जो बहुत कॉमनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बज़ाहिर और चीजें क्लियर हैं कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट यानी छोटे छोटे हेयर्स प्रोजेक्शंस जो इसकी निकल रही हैं उसको हम कहते हैं सीलिया, क्योंकि इसको लोकोमोशन करवाता है। इसके अलावा सेंट्रल पार्ट में इसके मौजूद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसका क्या काम है, वाटर को बैलेंस करने। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स मौजूद हैं। एक इसके अंदर मैक्रोन्यूक्लियस है, एक माइक्रोन्यूक्लियस है। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसके अंदर एक ओवल ग्रूव होता है। ग्रूव बोलते हैं एक डिम्पल लाइक स्ट्रक्चर या ओपनिंग जिससे इसके अंदर खाना एंटर होता है। एक एनल पोर है, एनल पोर उसको कहते हैं जिससे ये अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट कर देता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल
जो है इसका ओके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मैं बात कर चुकी हूँ। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सिंपल काम है उसको वाटर बैलेंस रखना। फूड वैक्यूल का काम है फूड को मेंटेन रखना। तो बहुत सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। ओके नेक्स्ट। ओके मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीलिया है। सीलिया हम कहते हैं स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि लोकोमोशन में काम आती हैं। और सीलिया एक पैरामीशियम पे बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं बीटिंग करते हैं। बीटिंग मतलब एक दूसरे को जब बीट करते हैं ना उस तरीके से बहुत सारे सीलिया जब एक साथ बीटिंग करते हैं तो उस तरीके से जो है ना ये पूरा का पूरा पैरामीशियम क्या करता है मूवमेंट करता है। तो पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है सीलिया। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं। द पैरामीशियम यूजेस सीलिया टू स्वीप फूड इनटू इट्स ओरल ग्रूव एंड इनटू फूड वैक्यूम। अभी हमने इसका एक स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने ओरल ग्रूव की बात की। ओरल ग्रूव उस ओपनिंग को बोलते हैं जहां से फूड इनटेक होता है। यू कैन सी हेयर के छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमेबा के अंदर एंटर हो रहे हैं जिस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ओरल ग्रूव कहते हैं। और इस फूड मॉलिक्यूल्स को ओरल ग्रुप में लेकर आने का काम कौन करता है सीलिया। सीलिया क्या करते हैं फूड को स्विप करते हैं लाइक अपने मतलब क्योंकि सीलिया मुसलसल मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो फूड मॉलिक्यूल्स जो भी है ना वो एंटर हो रहे होते हैं और इस ग्रुप के जरिए एंटर होते होते अंदर और क्या करते हैं सिंपली ये खाना अंदर जाकर डायरेक्टली फूड वैक्यूल के अंदर जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर जो है ना फूड वैक्यूल जो है ना लाइसोसोम के तौर पे काम करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका काम क्या है ये जो फूड इनटेक किया है पैरामीशियम ने इसको डाइजेस्ट करना। ये बेसिकली काम है पैरामीशियम का। ओके नेक्स्ट। उसके बाद अगर होम्योस्टेसिस की हम बात करें तो होम्योस्टेसिस के अंदर बिल्कुल ही सिमिलर अमेबा की तरीके से कि अगर इसका वाटर की बात की जाए तो वाटर बैलेंस रखने का काम जो है ना इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का है जिसका काम क्या है वाटर को बैलेंस रखना इन द पैरामीशियम। जो कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है वो रेगुलेशन करता है मटेरियल का कि कितना मटेरियल आना चाहिए कितना मटेरियल जाना चाहिए। इनटेक एंड आउटटेक ऑफ मटेरियल का काम जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन का है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही पैरामीशियम बीच में से किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल बाइनरी फिजन के तरीके से ये क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं युग्लिना की। युग्लिना को हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज इसके अंदर प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनिमल्स इसलिए हम इसको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एनिमल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं मौजूद होता इसीलिए ये इसके अंदर मौजूद है तो इसको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। इसका यहाँ पर एक माइक्रोग्राफ है जिसमें हम बजाय देख सकते हो आप लोग किस तरीके से युग्लिना दिखने में होता है। और अगर स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियोलस स्मॉल बॉडी को कहते हैं। इसके अंदर मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया नहीं होते बल्कि एक बड़ा सा यानी लॉन्ग फ्लेजिला होता है जो कि इसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं जिनका काम क्या है लाइट को कैप्चर करना या लाइट इंटेंसिटी को कैप्चर करना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो वाटर को बैलेंस करता है और क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखें बहुत जो है ना इजी सा एक स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस मौजूद है और साइड में आपको जो ग्रीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं ग्रीन ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं दैट आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम सिंपली कहते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड की टाइप है जो कि पिगमेंट रखता है अपने अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है इनटू फूड। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है यानी सूरज की रोशनी से खाना बनाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लॉन्ग फ्लेजिला मौजूद है। फ्लेजिलम जिसको हम कह सकते हैं सिंगुलर अगर है एक फ्लेजिला है तो उसको हम फ्लेजिलम कहेंगे। उसका काम सिंपल यही है लोकोमोशन करवाना। इसके अलावा इसके ऊपर पेलिकल मौजूद है जो कि फोल्डेड आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम पेलिकल है। ओके नेक्स्ट।
अडेप्टेशन अगर हम बात करें तो मूवमेंट आती है। मूवमेंट इसके अंदर बहुत सिंपल है। ये फ्लैजिला के जरिए अपनी फ्लैजिला को हम एक तरीके से टेल कंसीडर कर सकते हैं। टेल मतलब जिससे ये मूवमेंट कर रहा है, तो फ्लैजिला क्या है, एक टेल लाइक प्रोजेक्शन है जो कि लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल होती है, या इसके जरिए जुगलेना जो है ना लोकोमोट करता है इजीली इन द वाटर। ओके नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन इसकी तकरीबन प्रीवियस जो दो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े उन्हीं जैसी है। इसके न्यूट्रिशन का काम, इसके न्यूट्रिशन क्या होता है कि algae obtain nutrients by converting sunlight energy into food using chlorophyll pigment inside chloroplast. You can see कि मैंने आपको जैसे जिस तरह बताया कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। मींस क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो इस्तेमाल करके उसका काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और सनलाइट से न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं। तो सिंपल काम है, यूग्लिना को जो है ना किसी से फूड इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। दे आल्सो हैव एन आइड स्पॉट टू लोकेट सनलाइट। ये सनलाइट को लोकेट करने के लिए इनके पास एक अनदर ऑर्गेनेल है, इसको हम आई स्पॉट कहते हैं। The movement of a protist in response to light stimuli is called phototaxis. अगर कोई यूग्लिना लाइट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूग्लिना को लाइट जो है ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इनको लाइट की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटिस्ट यानी यूग्लिना की जो मूवमेंट है ना थ्रू लाइट या टुवर्ड्स लाइट, अगर मैं कहूँ तो उसको हम कहेंगे फोटोटैक्सिस। मतलब उसके अंदर स्टिमुलाई कौन है, लाइट है जो कि यूग्लिना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके नेक्स्ट, okay, let us talk that how does amoeba regulate their internal body environment. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्योंकि इसमें मौजूद है तो उसका सेम काम है वाटर को बैलेंस करना, जबकि सेल मेम्ब्रेन का काम है रेगुलेट करना उन मॉलिक्यूल्स को जो उसके अंदर आने चाहिए और जो उसके अंदर से जाने चाहिए। इनटेक एंड आउटटेक जो है ना इसको मेंटेन करने का काम सेल मेम्ब्रेन का है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जस्ट सिंपली वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है इन द यूग्लिना। ओके नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी असेक्सुअली भी। पहले हम बात करते हैं सेक्सुअली। अगर एसेक्सुअली बात करती हूँ मैं तो एसेक्सुअली ये बहुत सिंपल यानी बाइनरी फ्यूजन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, एक यूग्लिना बहुत ही सिंपली क्या करता है, डिवाइड होता है 4 जो है ना 2 यूग्लिनास के अंदर, और वो यूग्लिनास जब जो है ना अलग अलग हो जाते हैं तो उस तरीके से ये डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन बहुत सिंपल सा एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकेकार है जो कि यूग्लिना करते हैं। पर यूग्लिना अमेबा और पैरामीशियम से अलग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं कॉन्जुगेशन के जरिए। कॉन्जुगेशन को हम या स्पोर्स कहते हैं। यू कैन सी यहाँ पर एक लाइफ साइकिल सी बनी हुई है। लाइफ साइकिल में सिंपली क्या होता है, एक जाइगोस्पोर मौजूद है। जाइगोस्पोर ऐसा जो है ना जिसको सॉरी जाइगो नहीं जू स्पोर्स मौजूद है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, सिंपली क्या होता है, बल्कि आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारे जो है ना अमेबा है, सॉरी यूग्लिना है। ये यूग्लिना क्या करेंगे कि 2 डिफरेंट यूग्लिना यानी 2 डिफरेंट गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद इनके अंदर जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से जाइगोस्पोर बनेगा, और उस जाइगोस्पोर के अंदर जब म्योसिस होगी, म्योसिस किसको कहते हैं हम, जब एक सेल 4 डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं म्योसिस। तो जाइगोस्पोर में जब म्योसिस हो रही है तो एक जाइगोस्पोर में से 4 यूग्लिना निकल रहे हैं। इस तरीके से यूग्लिना क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के जरिए। ये स्पोर्स यानी कि गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स जब इनके फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर में म्योसिस होकर 4 यूग्लिना बनते हैं। तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है, माइटोसिस के जरिए होती है जिसमें एक यूग्लिना 2 उसके अंदर जो है ना सिंपली डिवाइड होता है। ओके नेक्स्ट, थैंक यू। तो आज हमने जस्ट एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट पढ़े जितने भी थे, अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कल हम फर्दर इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम इन डिटेल प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ भी जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटिस्ट है। तो उसके अंदर मजीद लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसके अंदर प्लास्मोडियम आता है, उसके अंदर मजीद चीजें आती हैं।
तो इंशाल्लाह कल हम उसको डिटेल पढ़ेंगे और इस चीज को कंप्लीट करेंगे। आज जस्ट एक ओवरव्यू था किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसके अंदर हमने सिंपलर living organisms पढ़े that are unicellular. So I hope you got it. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for listening. Allah Hafiz.